Hello everyone, welcome to Study IS. This entire current affairs series is all that you want for your prelims preparation. That's the assurance from the Study IS team. इस सीरीज में वी आर गोइंग टू कवर द साइंस एंड टेक, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो लास्ट माइल प्रिपरेशन या लास्ट डे प्रिपरेशन होना चाहिए, इसका एक होलिस्टिक पिक्चर वी आर प्रोवाइडिंग यू सो दैट you will be able to tackle such questions in the most effective manner. Remember one thing, if you have done this, that means science and tech में आपको ज्यादा घबराने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. So let us begin this journey of ours with this last mile preparation. Hello everyone, welcome to this session where we are going to discuss about the current events which are related to science and technology. We will take different fronts like material science or nanotechnology, healthcare and biotechnology, defense, space, nuclear and information technology, which are the major fronts on which prelims generally ask exams. Prelims asks questions in exams. So when we start with it, we are generally firstly going to start with the defense tech, and in defense techs we are going to cover some of the aspects which have been majorly, again as I said, on a current perspective. Why is it so? Because we need to understand one clear cut thing कि firstly science and tech में science based या general science based question काफी कम आते हैं. कभी कभार they come up with such kind of booms and bads, otherwise generally they avoid, or they, if they are asking one or two questions. Majorly what they are taking is the contemporary front on which they want to work, on which they want students also to work. So when we think about this subject, especially the defense tech, we need to understand some of the crucial part is that ki 2020 from 2025 to 2026 this front has been very much hot topic. Why is it so? Because if we start assessing from the last year prelim जब हो रहा था उस टाइम के पीरियड्स देखे और अब तक, यानी May 2025 to currently 2026, we will see some of the fronts like Operation Sindoor happened. Now because Operation Sindoor happened, we need to understand that due to Operation Sindoor, it is very much clear कि कुछ आप एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कुछ मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे, that is very much relevant. Similarly, the Russia-Ukraine crisis is also there, where we will take aspects related to some of the NATO based missiles which has been formed. We have already taken one aspect in the IR part where we discussed about our NATO Article 5 and Article 4 as well. So Poland की थोड़ी सी हम इस पे बात आएगी. A bit of Iran US crisis. On 15th of August, because the Prime Minister launched Mission Sudarshan Chakra, meaning development of indigenous air defense system. So that makes again this topic a very much hot one. In fact, recent jo indigenous defense technologies which are getting developed or produced in India has also led many different weapons which are coming in current ways, like we will discuss about a bit microwave energy weapons also, or what we say directed energy weapons which has come in recent times. तो इन चीजों को देखते हुए our overall front, this especially this part becomes very much important. So how we are going to proceed? Basically we will take certain aspects in terms of which were in the current. So as I said, firstly air defense system की बात हो रही है. It has already taken that कि India targets Pakistani air defense system. Again, we don't need to understand कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में क्या हुआ, कैसे हुआ. लाहौर में लाहौर का जो वो था वहां पे रिपोर्टेडली
खत्म हो गया, दैट्स इट. What is more important for us is, like it has also discussed what are air defense system and how it works. This is something it has said. The major aspect related to this is detect, track and intercept, be it your fighter aircraft, missiles or UAV or drones, what we say. So one thing we need to understand कि air defense system में क्या है कि ये कुछ detect, track and DTI concept में काम करते हैं. I will elaborate this. And what they can target is that fighter aircraft, missiles and unmanned aerial vehicles. Now the aspect comes ki how does it work, or what it has been given here, how air defense system works. So in a basic or knowledgeable sense, if we talk, we will see one very much clear cut things that needs to be understood in a very proper manner. Suppose it is our sovereign territory. Now this is what is our air defense system. There are certain radars or monitoring stations which are working here. That are tracking, or they have their own radar based system. So what happens in this, कि whenever any, be it a fighter aircraft, be it a missile, or be it any drone, if any of them enters, firstly, during this moment when it enters, any of them, if they are going to enter, radar will detect the same wherever it is going to enter. This process is called detection. जहां पे वो enter होता है वो penetration को they handle. ठीक है? Once it has entered, now it will, for a while it will track the speed कि किस स्पीड से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं इस सिस्टम में या उस एयर स्पेस में. कहां से अगर डिटेक्ट किया है वो ट्रैक करेंगे उस पॉइंट पे जहां से एंट्री पॉइंट है. एंड देन अकॉर्डिंगली इनका एयर जो मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं, इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिससे आप अपने मिसाइल्स छोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का आकाश तीर था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, नागास्त्र हो गया, S-400. These were certain kind of systems जो उस टाइम डेवलप्ड है. तो ये उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जहां पे जैसे ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक के अकॉर्डिंग दे कैन प्रेडिक्ट कि एट व्हाट टाइम दे विल बी एट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर पे, जहां पे जब ये अटैक करेंगे तो वो उस अकॉर्डिंग उस चीज को एलिमिनेट कर सके. दिस इज हाउ द एयर डिफेंस सिस्टम वर्क्स. इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूचर पॉइंट को ट्रैक करते हुए दे एलिमिनेट सच एरियाज. दैट्स हाउ एयर डिफेंस सिस्टम वर्क्स. ठीक है? सो कमिंग बैक टू द एस्पेक्ट की दिस इज व्हाट इट विल एक्सप्लेन एज वेल कि रडार होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, डिफेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. दिस इज ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, मिलिट्री, ये सारा चीज उस अकॉर्डिंग आएगा कि आपके रडार प्राइमरी डिटेक्शन टूल करेगा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से दिखाया. दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो इसमें अगर आप इतना डिटेलिंग से पढ़ने जाओगे, इट इज समवेयर, दिस इज जस्ट फॉर योर पीपीटी, आपको उसका ड्राइव में वो मिल जाएगा, आप उस अकॉर्डिंग रीड कर सकते हो. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप डायग्रामेटिकली इसको कितना जल्दी अंडरस्टैंड करके आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर सको. वेपन्स जो यूज होते हैं इन एयर डिफेंस, जैसा भी हमने बात किया कि एयर डिफेंस के खुद के आकाश तीर और ये सब रहेंगे, मिसाइल सिस्टम्स भी रहेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए.
जैसे अग्नि एंड ये सारे चीजें हैं ये हमारे पास अंडर अवर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट. दिस इज अवर प्रोग्राम विच वी स्टार्टेड इन 1980s, जिसके अंडर हमने अग्नि मिसाइल बनाया है, पृथ्वी है, त्रिशूल, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स ऑफ मिसाइल्स वी हैव डेवलप्ड. एयर, जिस तरह के हमने एयर टू एयर भी लिया, सरफेस टू सरफेस लिया, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, इस तरह से हमने डिफरेंट बनाया. उसमें भी हमने मिग 21, हम एयरक्राफ्ट उस अकॉर्डिंग में हम डेवलप कर सकते. डसॉल्ट रफाल इज अवर लेटेस्ट वेरिएंट में जो हमारे करंटली है, उसमें हम देख सकते हैं. लॉन्ग रेंज में जैसे मैंने कहा S-400 है ही हमारे पास. मीडियम रेंज में मोर मोबाइल, अगेन मीडियम रेंज मतलब कम डिस्टेंस वाइज उस अकॉर्डिंग कर रहा है, बट दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. इस चीज को आपको एक ओवरऑल होना चाहिए कि आपके क्या क्या मेजर कोर कंपोनेंट्स होने चाहिए. जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, सरफेस टू एयर में मिसाइल्स होंगे, ये सारी चीज आपको एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए. अगेन जैसे भाई मैंने कहा कि आकाश मिसाइल है, आकाश तीर सिस्टम है, S-400 ट्रायम्फ है. Barak missiles have been given by Israel. S-400 is from Russia. We will also discuss about S-500 as well. Akash Tir is an indigenously India का ही खुद का developed है. तो this is something that we need to understand. ठीक है. प्लस जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात जो इन्होंने कही है कि कभी कभार आप जीपीएस स्पूफिंग या क्या करोगे, जो एवियोनिक्स होंगे, जैसे अगर आपका कोई मिसाइल है या ड्रोन है, यहां पे अभी हमने जो देखा मिसाइल एयरक्राफ्ट या ड्रोन होंगे, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इनके सिस्टम को कभी कभार पेनिट्रेट करके इनको हैक करके ओवरऑल इन्हें डिस्टर्ब किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ एयर डिफेंस थिंग. Next is this Songar drone. Now why this Songar drone again came into मतलब न्यूज में क्यों था? Because we need to again understand Songar drone is again ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है. पाकिस्तान इसको यूज करता है. It has been given by Turkey या तुर्की आज के टाइम पे हम इन्हें कहते हैं. Now UPSC what it they are going to ask, अगर उन्हें पूछना होगा तो वो मैच द फॉलोइंग पेयर्स में पूछ सकता है कि कोई स्पेसिफिक ड्रोन उसने इंडिया की तरफ से दे दिया, MQ-91B विच इज ऑफ अमेरिका एंड सोनगर, ये 3-4 ड्रोन को मिक्स करके पूछा कि ये कहां पे डेवलप हुआ है, किसके द्वारा बनाई गई है. दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क. जनरली व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट सोनगर ड्रोन अगेन इट इज दैट कि पहला चीज आपको क्या पता होना चाहिए, डे एंड नाइट ऑपरेशन, यानी नाइट कैपेबिलिटी भी इसकी है फॉर डिफेंस अटैक. सेकेंडली 300 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, यानी रिमोट कंपैटिबिलिटी भी ये थोड़ा इंक्रीज करता है कि आप हायर रेंज में थोड़ा ऊपर जाकर भी उस अकॉर्डिंग अटैक किया जा सके. कैपेबल फ्लाइट टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स. ठीक है. एंड टेक ऑफ वेट शुड बी 45 kg. तो यस, ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, सोनगार ड्रोन 45 kg के बेसिस में अगर देखा जाए, ड्रोन्स के अगर आज के जो वेटेजेस जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं, 45 kg is not a very substantial one. That means अगर सोनगार ड्रोन्स को अटैक के लिए भेजा जाए, जो कि इन्होंने किया भी था, it is not going to create a substantial impact. Although ड्रोन्स वैसे करते नहीं है, unless and until drone swarming या फिर bunches of drones are moving towards your air territory या air space, then only it can create a major impact. But given that कि payload इसका कम है, आप ज्यादा मिसाइल या कोई वेपनरी सिस्टम इसमें ज्यादा रख भी नहीं सकते हो. हाँ, व्हाट कैन यू डू इज दैट कि अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा इसमें, तो आप कुछ स्प्लैशिंग या इलेक्ट्रॉनिक आपके एयर डिफेंस को में थोड़ा सा अगर कुछ पेनिट्रेशन या इंपैक्ट डाल सकते हो, वो हो सकता है. ज्यादा इससे ज्यादा और नहीं करेंगे. अदरवाइज इसका मेजर काम क्या है, सर्विलांस कैमरा, कि आप मैपिंग ऑफ दैट एरिया कैन बी डन. Mapping of the area can be done. They operate effectively at 5 km range. Again,
रिमोट कंपैटिबिलिटी भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, यस अगेन इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अगेन दिस इज अगेन अबाउट एयर डिफेंस की आपका सिस्टम कैसे काम करता है, आपका एयर डिफेंस ओवरऑल किस तरह से काम किया। जैसे मैंने कहा मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिटेक्ट ट्रैक इंटरसेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये सब चीज का एक ओवरऑल होलिस्टिक एंगल बताएगा। कैसे क्यों किसने बनाया इंडिया में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल ने किया है। इट सिंथेसाइजेस ग्राउंड बेस्ड है, अगेन मॉनिटरिंग सिस्टम है, एयरबॉर्न रडार ताकि आप डिटेक्ट कर सको, सिविल एविएशन कम्युनिकेशन रडार, कुछ को आपने इन चीजों के लिए भी लगा के रखा है, कम्युनिकेशन नोड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, कि आपको उस अकॉर्डिंग सिग्नल्स मिल सके व्हेन एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और वीकेंड से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए या फिर आपके मिसाइल्स हो गए, इनके बारे में कम्युनिकेशन उस अकॉर्डिंग दे सके। एंड ये सिचुएशनल अवेयरनेस तो ये अपने आप में बताएगा ही। ये उस तरह का एक डायग्राम भी है कि भाई मल्टी काउंटर ड्रोन या एयर डिफेंस कैसे काम करता है, कि भाई मीडियम रेंज, छोटे रेंज में आ गया, पॉइंट डिफेंस हो गया, जैसे मिसाइल पॉइंट डिफेंस एक पर्टिकुलर जगह में करेगा। फाइटर एयरक्राफ्ट के पास क्योंकि मिसाइल्स होते तो छोड़ता छोड़ता वो जाएगा आगे, तो ये लीनियर शेप में काम करेगा इन चीजों पे। बट अगेन जैसे मैंने अभी आपको एयर डिफेंस सिस्टम समझाया कि हाउ इट डज इट वर्क, इट इज मेजरली ऑन दैट पार्ट ऑन विच इट इज वर्किंग। INS तमल, दिस वॉज ऑल्सो केम इन टू द न्यूज, खासकर 1 जुलाई 2025 में। हुआ क्या था कि इंडिया में कमीशन हो गया है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या क्यों इस चीज पे ज्यादा फोकस रखना है। फर्स्टली जब इस तरह के INS या जो भी पूछता है, वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि व्हाट and how, what are the technologies that are used, what kind of capabilities it has, सबमरीन है, न्यूक्लियर वॉरफेयर है, क्या चीजें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन जैसे ये जो चीजें दी गई हैं, जैसे लेंथ आप देख रहे हो, बीम, आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज जस्ट अ डिजाइनिंग कैपेबिलिटी, इसमें इतना ध्यान नहीं देना। मेजर आपको किस चीज में ध्यान देना है कि भाई काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैसे वो हैंडल कर सकता है। काइंड ऑफ ऑपरेशन बीट लाइक पेट्रोलिंग के लिए है, कि अटैक करने के लिए, मनूवर करने के लिए, या कोस्टल गार्ड्स है इन चीजों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस पे है। ठीक है, जिसमें अभी जैसे आपकी एक बात आएगी कि सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, आपको ये दिख भी रहा है इसमें कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट की बात चल रही है। स्टेल्थ फ्रिगेट में अगर हम देखें तो उसमें भी आपको दिख पाएगा कि व्हाट इज द स्टेल्थ फ्रिगेट। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ एंड फाइनल फ्रिगेट अंडर इंडिया रशिया के कुछ एग्रीमेंट था, जिसके बेसिस में आपको ये बार बार मिल रहा है, जिसमें तुशील भी था, लास्ट तुशील हमें मिला है। लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप फॉर इंडिया रिफ्लेक्टिंग आत्मनिर्भर, बिकॉज इंडिया जनरली खुद के डेवलपमेंट में है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज अ फ्रिगेट। सी जनरली जो नेवल शिप्स जो होती हैं वो तीन तरीके से काम करती है। वन इज कॉर्वेट क्लास, सेकेंड इज स्टेल्थ या स्टेल्थ फ्रिगेट जिसे हम कहते हैं, एंड लास्टली इट इज डिस्ट्रॉयर। कॉर्वेट इज मेजरली यूज फॉर पेट्रोलिंग, कि आप आसपास के इलाकों में सॉर्ट ऑफ सर्विलांस कर रहे हो। किस तरह का सर्विलांस, कि भाई कई दूसरे बाहर की शिप्स अगर आ रही हैं तो ट्रैक करना कि क्या वो गलत इंटेंशन के साथ तो नहीं आई है, उस अकॉर्डिंग वापस भेजना। पेट्रोलिंग करना है यानी आपको सर्विलांस आपका स्पीड अप मैनर में काम करना चाहिए। तो इनका एक चीज होता है कि पहले तो ये स्मॉल साइजेस के होते हैं, सेकेंडली
स्मॉल साइज के साथ साथ क्या होता है, ये फास्टर मैन्युअबिलिटी रहती है, मोबिलिटी भी फास्ट मोबिलिटी रहती है। जितना जल्दी आप मूव करेंगे उतना जल्दी आप सर्विलांस और ट्रैक बार बार कर सकते हैं। जितना जल्दी आप काम कर रहे हैं, जितना जल्दी आप मूव कर रहे हैं, तो उतनी बार आप पेट्रोलिंग उस एरिया की कर पाएंगे। तो कॉर्वेट इज मोर अबाउट पेट्रोलिंग, स्टेल्थ फ्रिगेट इज अबाउट सर्विलांस तो है ही है, बट सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है मैरीटाइम वाटर्स में। कि भाई अगर मिल तो गया पेट्रोलिंग में, जैसे आपने एक दो मिसाइल रखते हैं, इसमें आप क्या करोगे कि भाई एक दो मिसाइल भी क्यों चाहिए, कि इन केस अगर किसी ने अटैक किया आपके ऊपर ड्यूरिंग व्हेन यू आर पेट्रोलिंग, इनको भी तो कुछ डिटरेंस मिलना चाहिए। इनके बाद अगर जो मेजर अटैक करने हैं, कुछ जो हैंडल करेंगे या कोस्ट गार्ड्स को प्रोटेक्शन देना है, इन सबको जो ओवरऑल एक प्रोटेक्शन मीडियम लेवल तक अगर देना है, वो स्टेल्थ फ्रिगेट करता है। इनके साइज मीडियम होंगे, एंड यस इट इज फॉर श्योर कि ये कहीं ना कहीं इस चीज पे भी काम करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ number of what should be the quantum of weapons that should be present with them. And lastly, destroyer class. This one is the one which is the major line of defense या primary line of defense, जिनको actually attacks के लिए रखा जाता है। Now they will be of large size, and yes, इनमें number of warheads will be the highest in comparison to stealth or corvette class. So these are some of the essential tenets that one need to understand when it comes to stealth frigate और जो भी चीजें हैं। क्या दे रहा है, what are the key features and technology of INS? Again, this part is not that much relevant, but yes, रशिया और इंडिया के बिकॉज ज्वाइंट कोलैबोरेशन से हो रहा है, तो थोड़ा सा इंडिजिनस तो होगा ही होगा। इट इज इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाउ वी विल कम टू दिस पार्ट की व्हाट इज अ ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। देन आर्सेनल इंक्लूड्स वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑब्वियसली सरफेस टू एयर इसलिए क्योंकि भाई सरफेस से ही आप अटैक करोगे, एयर की तरफ जाएगा, उन चीजों के लिए है। मतलब अगर मैरीटाइम वाटर्स में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा है तो आप उनको भी ट्रैक डाउन कर सकते हो। द शिप फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। अगेन कि आप कितना जल्दी उस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो, इस चीज पे ज्यादा है। मेजर आपको क्या पता होना चाहिए इसमें आईएनएस तमल में, कि पहला चीज तो स्टेल्थ फ्रिगेट है। तुलिश और ये जो अभी हमने बात की तुलसी और इन सब के पहले, ये इज द लास्ट वन जो इंडिया रशिया के बीच में एक जॉइंट कोलैबोरेशन से बनना था। एंड थर्डली इट इज कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं। नाउ कम्स द एस्पेक्ट कि भाई ये क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सोनिक क्रूज मिसाइल, ये सारे होते क्या? सो क्रूज मिसाइल आर जनरली कि वो मिसाइल्स होंगे, क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल, दो तरह के मिसाइल्स होते हैं। क्रूज मिसाइल्स में क्या होंगे कि आपने अगर अटैक किया, ये उस अकॉर्डिंग मूव करेगा स्ट्रेट वे या किसी तरीके से काम करेगा, बट इट इज मेजरली इट वर्क्स विद इन द एम्बिट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और इनकी स्पीड कहीं ना कहीं कांस्टेंट जनरली रहती है, जनरली चेंज नहीं होती है। ब्रह्मोस के साथ क्या है कि ये जैसे मैंने कहा ये अर्थ एटमॉस्फेयर में काम करता है। बैलिस्टिक के साथ क्या होगा, नॉट ब्रह्मोस एट देयर, ये क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। इफ दिस इज अर्थ, बैलिस्टिक मिसाइल गोज आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो स्पीड या जो भी चीज होंगी वो इस तरह से काम करती है, मेजरली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करेगी। भाई एक हाइट अचीव कर लिया, उसके बाद जब वो गिरेगा तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिर सकता है। पैराबोलिक थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी होती है।
एंड ड्यू टू ग्रेविटी और इन सब चीजों की वजह से क्या है कि इनकी स्पीड आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैन्यूवर कर सकते हैं। उसमें भी जैसे मैंने कहा कि सबसोनिक मिसाइल होते हैं, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, तीन तरह के मिसाइल्स आएंगे। सोनिक मींस साउंड, इनके स्पीड पे मेजरली डिपेंड करता है कि ये कौन सा मिसाइल है। अगर कोई 0.8 मैक, मैक मींस 1 मैक मींस साउंड ऑफ स्पीड, यानी साउंड के स्पीड से कम अगर कोई मूव करे तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। 2 to 3 मैक के बीच में कर रही है तो वो सुपरसोनिक, एंड हाइपरसोनिक जो 5 मैक के ऊपर कर रही है। मेजरली इस पे आजकल बहुत सारे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं कि भाई जितना सा हाइपरसोनिक मिसाइल्स हम डेवलप कर सके। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब क्या हुआ, यानी 2.8 से 3 मैक या 2 to 3 मैक के बीच में ये काम करेगा। ठीक है, ना अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल, अगेन पेट्रोलिंग का होगा, दैट मींस ये कॉर्वेट क्लास होगा। अभी हमने वी हैव डिस्कस्ड अ बिट व्हाइल आईएनएस तमल के केस में। सो ये कुछ चीज पता होना चाहिए। अदम्य से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, लेट मी शो यू। क्योंकि पेट्रोल वेसल है दैट मींस ये कॉर्वेट क्लास है। फर्स्ट एफपीवी, फर्स्ट पेट्रोलिंग वेसल ऑफ द 8 जो डिजाइंड एंड बिल्ट बाय गोवा, मतलब इंडिजिनियस बिल्ट है। क्या क्या चीजें इनमें, कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोल, ऑब्वियसली पेट्रोलिंग है तो कोस्टल एरिया एंड ऑफशोर एरिया, आसपास के एरिया को वो करेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू, इफ इन केस गायब हो जाता है तो उनको बचाना। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, यानी इंटरनेशनल लॉज, मतलब कोई बाहर का कोई इस तरह से डायरेक्टली या इलिसिटली एंट्री ना करे, तो ये सारा चीज होगा। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, तो आप कहीं ना कहीं कॉर्वेट क्लास के एप्लीकेशंस में भी ये चीज डाल सकते हो कि अगर कल के दिन यूपीएससी ने पूछा कि एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन रोकने के लिए, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट के लिए, पेट्रोलिंग और इन सब चीजों के लिए, तो ये सारे उसी के ही एप्लीकेशंस है ना। अगेन ज्यादा चीज उसमें नहीं है ना। हाई स्पीड इन शैलो वाटर्स, हमने भी बात की कि भाई एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए, तेजी से मूव ऑन करे, ताकि पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी, पेट्रोलिंग के इंस्टेंसेस उस अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट बनाया जा सके। एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट, ऑब्वियसली स्पीड है तो रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा। नाउ दिस इज अ बिट, इतना इस चीज में उतना ध्यान नहीं देना है। लेट अस जस्ट कीप दैट की आपको मनूवरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको मेजरली इतना पता होना चाहिए अदम्य इज रिलेटेड टू कॉर्वेट। नेक्स्ट इज आईएनएस उदयगिरी। INS Udaygiri is part of Project 17A, which is something की indigenous production of naval class. होते रहना चाहिए। कहां पे बनाए गए, अगेन नेम्ड आफ्टर उदयगिरी माउंटेन रेंज। इतना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट, यानी मैंने क्या कहा मीडियम साइज होगा बट सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपन्स इसमें जरूर होंगे। ठीक है, एंड यस मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट हो गया। क्या चीज है इनके पास, सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी ये इनके पास जो मिसाइल्स होंगे वो फाइटर एयरक्राफ्ट को अटैक नहीं कर सकते, ये ओपोनेंट या एनिमी के जो आपके मैरीटाइम वाटर में एंट्री किए उनको डिटर कर सकता है। हाँ, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होंगे, यानी 300 to 500 किलोमीटर, या उस और कम ही उससे होता है सब्सटेंशियली, क्योंकि नेवल वाटर्स में इतना वो नहीं कर पाते, हम ट्रैक नहीं कर पाते। सुपरसोनिक है यानी 2.8 to 3 उस अकॉर्डिंग होगा ही होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एज आई डिस्कस्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन से होते हैं? अभी रिसेंटली कौन हुआ है, सी टर्मिनेटर वॉरशिप। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक सी टर्मिनेटर वॉरशिप और एक ओरेशनिक में हम देखेंगे, जहां पे रशिया हैज यूज्ड देयर
और kept their or incorporated their hypersonic missiles। और ओरिशनिक तो काफी न्यूज में रहा बिकॉज यूक्रेन में अभी जो अटैक हुआ था उसमें इसका यूज किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल, अगेन आपको ये चीज नहीं देखना है कि एक्सीडिंग 5 मैक करता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्या कर रहा है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्च बाय रॉकेट, दे ग्लाइड टुवर्ड्स द टारगेट यूजिंग एयर डायनामिक लिफ्ट। नाउ अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि एयर डायनामिक लिफ्ट कैसे काम करता है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि if this is a aircraft something like that or naval class whatever it is, इसमें आपका एक फ्लाइट होता है एंड वन इसका खुद का वेट होगा। अगर फ्लाइट इज हायर देन वेट, यानी आप ऊपर चढ़ने का फोर्स इस तरह से लगा रहे हो कि आपके वेट आपका क्या करेगा? ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस वो नीचे खींचना चाहेगा, बट फ्लाइट से आप क्या कर रहे हो? ऊपर जाना चाहते हो। अगर फ्लाइट का जो फोर्स आप लगा रहे, इतनी ताकत लगा दिया कि वेट से ज्यादा है, तो वो क्या होगा? ऊपर जाएगी, यानी इट विल मूव अप। आपका मिसाइल इस तरह से जो एयर हाइपर ग्लाइड व्हीकल है उस चीज पे काम कर रहा है। अगर फ्लाइट इज स्मॉलर देन वेट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मूव डाउन। बट दिस इज नॉट द ओनली मूवमेंट जो इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट है इस तरह से वो करते हैं। वन इज थ्रस्ट, यानी आगे कैसे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आप पेट्रोल या व्हीकल जो फ्यूल जो आप यूज कर रहे हो वो आप पीछे से छोड़ो। सेकेंड इज ड्रैग। ड्रैग मींस एयर जो आपका, ये जो हवा जिसके अगेंस्ट में आप पुश कर रहे हो। फाइटर एयरक्राफ्ट जब आगे बढ़ेगा, नॉट जस्ट वो फ्यूल को पीछे छोड़ रहा है, एयर जो उसके साथ आगे लड़ रही है वो भी तो फ्रिक्शन कर रही है। तो अगर इफ दिस थ्रस्ट इज हायर देन ड्रैग, इससे क्या होगा? अगर फ्रिक्शन आपका कम है, आप आगे मूवमेंट करना चाहते हो, दैट मीन्स मूव फॉरवर्ड करेगा। एंड इफ थ्रस्ट इज smaller than drag, it will move backward. This is what is all about. This is what is the principle of aerodynamic lift. This is the principle of aerodynamic lift. Now again जो दे रहा है, how do hypersonic missile augment a country's security architecture? भाई yes, strategic deterrence बढ़ेगा। प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की कहां पे एकदम एग्जैक्ट जगह पे मारना उस अकॉर्डिंग किया जा सके। जियोपॉलिटिकल लेवरेज, दिस इज अ बिट रिलेटेड टू मेंस पार्ट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इससे ज्यादा आपको क्या करना है? एसेंशियल फॉर इंडिया का कि भी क्या है? रीजनल थ्रेट जैसे चाइना पाकिस्तान, इनको आप टैकल कैसे करते हो? आपका स्ट्रेटेजिक रीच कैसे, मतलब जैसे इस्लामाबाद इन 4 मिनट्स, कराची इन 6 मिनट्स, ये सारा चीज कैसे हैंडल होता है। इंडिजिनस कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका इंपोर्ट बिल कम हो और आप खुद ही प्रोडक्शन करें। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑल दिस विल कम। अगेन स्टेल्थ फ्रिगेट एंड इंडियाज नेवल मॉडर्नाइजेशन। उदयगिरी की अभी हमने बात किया, हिमगिरी इज अनदर वन। अच्छा, यहां पे आप जैसे देख पा रहे हो कि डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, कॉर्वेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक आपका, यानी कुछ कुछ जिसमें नेवल शिप्स में जिसमें आप केवल एयरक्राफ्ट कैरियर सकते हो और कुछ में दैट इज व्हाट इज अबाउट। द थिंग इज दैट थिंक अबाउट व्हाट इज दिस एम्फीबियस शिप या एम्फीबियन, अगर किसी को पता है तो दे कैन इजीली ट्रैक डाउन हाउ दिस और व्हाट इज द मेजर मॉडल बिहाइंड एम्फीबियस शिप। ओके, एम्फीबियंस आर जनरली, पहले चीज क्या समझ सकते हैं कि दीज आर द वंस विच आर मेजरली वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट यू कैन से, जैसे एम्फीबियंस क्या हो गए, वो टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे, एक्वाटिक में भी रहेंगे। ऐसे एम्फीबियस शिप्स आप इस तरह से बनाते हो जहां पे आप ग्राउंड फोर्सेस को आप साथ में रखते हो
और ये वहां तक जाती हैं, आपके पास वॉरहेड्स तो रहेंगे लेकिन आपके पास ग्राउंड फोर्स भी रहेंगी जो क्या करेंगी, आप जैसे टेरेस्ट्रियल वाटर में, आप टेरेस्ट्रियल लैंड में उतरे, आपने उन्हीं चीजों को, ग्राउंड फोर्स को भी डिप्लॉय किया फॉर एनी काइंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एज वेल। तो इस चीज में आपको क्या देखना है, अभी मैंने बताया था कि स्टेल्थ फ्रिगेट का काम क्या है, तो आपको उतना उस चीज में नहीं आना है। रोल क्या होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अंदर जाके भी जो अंदर आपके ऐसे एंटी सबमरीन है, जो सबमरीन ऐसे जो बने हैं विच आर ऑपरेटिंग बिलो द वाटर्स एंड कैन बी ए मेजर थ्रेट टू यू, आप उनको भी अटैक कर सकते हैं। एंटी एयर वॉरफेयर, अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको भी अटैक कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, नेवल शिप्स को भी आप उस अकॉर्डिंग टैकल कर सकते हैं। तो तीनों फ्रंट्स पे स्टेल्थ फ्रिगेट काम करता है। आईएनएस एंड्रोथ अगेन एन एंटी सबमरीन वॉरशिप है, इंडिजिनियसली बिल्ट है, इतना पता होना चाहिए। किस नाम पे है, लक्षद्वीप आर्किपेलागो, दैट्स इट। लार्जेस्ट वॉरशिप्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, दैट इज व्हाई आईएनएस एंड्रोथ इज essential. This can be asked. Powered by diesel engine water jet system, मतलब जो मेजरली फ्यूल यूज होता है वो डीजल पे कहीं ना कहीं बात काम करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाटर से कोई भी शिप्स इस तरह से जनरली नहीं चलता, इधर वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगे और ये डीजल या पेट्रोल पावर्ड होंगे। आर्म्ड विद लाइट वेट टॉर्पीडोज, इंडिजियसली एएसडब्ल्यू, अगेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स हो गए, एडवांस शैलो वाटर सोनार। एडवांस शैलो वाटर मतलब कम पानी में भी आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई कितने डिस्टेंस पे आपके वो एनिमी व्हीकल्स है, एनिमी फ्लीट्स वहां पे हैं। नेवीज एंटी मरीन कोस्टल सर्विलांस एंड माइन लेयरिंग कैपेबिलिटी, दैट्स इट। इससे मेजरली आपको इन दो पे ज्यादा फोकस रखना है। इन बिटवीन एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया कि जस्ट बिकॉज कि हमने बात की कि 4 नेवल शिप्स थे जो इंडिया एंड रशिया के बीच में बिल्ट हुआ है। एक तो तमल हुआ, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अनदर इज तुलसी जो 2024 में आया था और इसके बारे में अभी हमने बात भी की है। थर्ड इज त्रिपुत एंड फोर्थ इज तवस्य। तो these are the 4 naval ships which has been jointly built in collaboration between India and Russia. So this is a bit important. Okay, coming back to Tejas. तेजस इज अगेन, मतलब कुछ एक हमने डील किया है कि जहां पे हिंदुस्तान एयर कुछ वो करेगी। इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। एवियोनिक्स में क्या है, उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, ऐसा जो दिया है। नाउ दिस इज रडार। What is this scanned array radar? We need to understand one thing. Another is that unified electronic warfare को जैमर आपने साथ साथ इनको प्रोवाइड किया कि ताकि बाकी के आसपास के सिस्टम्स को आप रोक सके। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी इसमें भी एक बेसिक आइडिया है जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम में मेजरली काम आता है। सो इनमें मान लीजिए अगर कोई दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ रडार विच इज वर्किंग, ये दिस इज हाउ इट वर्क्स कि भाई अपना जो वेव सिग्नल है एरे के फॉर्म में इस तरह से भेजता है कि भाई इफ इन केस एनी क्लोजर बाय फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई मिसाइल छोड़ा, किसी ने अगर मिस कर दिया कि भाई यहां से अगर इस सिग्नल से नहीं किया, कहीं पे और जाके ड्रॉप किया, तो ये क्या करता है उस अकॉर्डिंग ट्रैक डाउन कर सकता है कि किसी एक मोमेंट में उसको हैंडल कर लेगा ताकि इट कैन अंडरस्टैंड और डिटेक्ट एनी एनिमी ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट और समथिंग विच इज कमिंग क्लोजर टू इट। एरे का मींस आपके रडार इस तरह से इंस्टॉल्ड हैं कि ये मोर देन 1 रेंज पे काम कर रहे हैं और एक साथ 3-4 ऑपरेट कर रहे हैं, और मोर देन दैट ऑल्सो कैन ऑपरेट।
लास्टली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अस्त्र मिसाइल इनके पास है और बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी लाइन ऑफ साइट को क्रॉस करेगा और इतना ज्यादा है कि मतलब वो एक 30 to 40 किलोमीटर के रेंज में भी ये कहीं ना कहीं ट्रैक डाउन कर सकती है। जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि मिग 21 क्या था, कब आया, 1960s में है। मिग 23, मिग 27 ऑल्दो ये सब डीकमीशन्ड हो चुके हैं, इनके भी रिटायरमेंट हो चुके हैं। मिराज 2000 वाज द सम ऑफ द अर्लीस्ट जो इंडिया ने खुद एक तरह से एक्वायर तो किया, लेकिन इंडिया को ने उसकी एडवांस एक इकोनॉमिक खुद से बनाई। सुखोई M30 अगेन रशिया ने दी है। एंड अभी ये जो एडवांस एयरक्राफ्ट आमका की बात चल रही है, इसमें भी हमने अभी रफाल को इसीलिए एक्वायर किया ताकि हमारे जो रिटायर हो रहे हैं, डीकमीशन्ड हो रहे जो एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको उस अकॉर्डिंग हैंडल किया जा सके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क 1 नेटो's टाइनी न्यू मिसाइल। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने IR में एक हमने बात किया हुआ है आर्टिकल 4 and 5 कि मेजरली लाने का जरूरत क्यों पड़ा। इस बनाया किसने था, इस्तोनिया ने बनाया एक तरह से, या इस्तोनिया की मेजरली एक स्ट्रेटेजी के फॉर्म में है। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द फर्स्ट मिसाइल्स विच आर वर्किंग ऑन AI गाइडेड इंटरसेप्टर। यानी ये बीच में भी अगर लगता है कि इसे अपनी स्पीड को फर्दर इंक्रीज करने की जरूरत है, इट हैज डन सर्टेन काइंड ऑफ मिसकैलकुलेशन in detecting and tracking the speed or the movement of any fighter aircraft or other things, ये उस चीज को हैंडल कर ले। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भाई रशिया का जो यूक्रेन का अटैक चल रहा है, रिसेंटली उसने क्या किया, पोलैंड में भी पेट्रोलिंग की थी अपने फाइटर जेट्स के थ्रू। तो पोलैंड ने क्या किया, आर्टिकल 4 को ट्रिगर किया था। आर्टिकल 4 में क्या है कि एक बार सारे लोग आपस में, जो नेटो के मेंबर्स होते हैं वो आपस में पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, ओवरऑल कंसल्टेशन, मेंबरशिप कंसल्टेशन होती है कि वेदर इट दिस थिंग इज एन इमिनेंट थ्रेट और नॉट। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इटलीज माइकलएंजेलो डोम, अगेन ये वही एयर डिफेंस सिस्टम पे है। एयर डिफेंस सिस्टम में अगर हम देखें, माइकलएंजेलो डोम इटली का बनाया हुआ है, तो हमें ये कुछ और देख लेना चाहिए, जैसे इजराइल का आयरन डोम है, इटली का एज आई डिस्कस्ड माइकलएंजेलो, यूएस ने रिसेंटली इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया का भी S-400 है, S-500 है, यूएस का थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। थार्ड भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा, बिकॉज ये वेस्ट एशियन कंट्रीज में काफी इस चीज को इंस्टॉल किया गया और ईरान ने इनको भी इंटरसेप्ट कर उस अकॉर्डिंग टैकल किया। तो यस, माइकलएंजेलो वहां के फेमस कल्चर और उनके नाम पे दिया गया है। मेजर थिंग इज दैट कि भाई पहला चीज की जो फिक्स्ड हार्वेस्ट सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ सोफिस्टिकेटेड डिजिटल लेयर दैट यूजेस प्रेडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन दो आपको ऐसे दिखे जो आपके करंट में कहीं ना कहीं पूछे जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, जो डिफेंस में जिस तरह से हम कह रहे हैं AI वॉरफेयर आ रहा है। पहला तो माइकलएंजेलो डोम है, आपके इनफैक्ट मेंस में भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप ये चीज लिख सकते हो एज एन एग्जांपल। माइकलएंजेलो डोम हो गया, एंड द मार्क 1 जो टाइनी नेटो का जो मिसाइल है, ये इस तरह से काम करते हैं। Another thing, monitor and respond to modern multi-domain threats, यानी again fighter aircrafts, missiles, and thirdly UAVs। तो तीनों को ये उस अकॉर्डिंग टैकल कर सकता है। मल्टी डोमेन AI प्रेडिक्टिव, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो इसमें उस चीज में नहीं जाना है। S-500, इंडिया ने बड़ी बातचीत चल रही है कि इंडिया रशिया के बीच में S-500 को कवर करने की बात चल रही है। इसमें जो मेजर चीजें कवर करना है वो चीज है कि पहला चीज, इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स अप टू 600 किलोमीटर। हमने ऑलरेडी बात किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एरियल टारगेट्स अप टू 400 किलोमीटर,
थोड़ा सा उस चीज का आगे फर्दर वर्जन है। और ये कहीं ना कहीं जो मिशन सुदर्शन चक्र की जो हमने बात की उस चीज को प्लान आउट करके कहीं ना कहीं किया जा रहा है। कैसे डिफरेंट है कि पहला चीज बैलिस्टिक मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों को कवर कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल प्लस हाइपरसोनिक, अभी जो हमने बात की कि 5 मैक्स तक जो जा सकते हैं, दोनों को टैकल S-500 कर सकता है, जो S-400 नहीं कर पाएगा। S-400 ऑप्टिमाइज फॉर एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल एंड लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल। लिमिटेड है काफी ज्यादा, वो नहीं कर सकता। इसका रेंज क्योंकि 600 है, यहां पर 400 है, बट यहां पर क्या है 400 किलोमीटर भले दिया, लेकिन ये एल्टीट्यूड जो रहेगा वो 30 किलोमीटर है, विच इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स लेस देन S-500। न्यू जनरेशन एसा, अभी जो हमने बात किया था, यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंज, तभी तो बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज पता होना चाहिए। इनके पास जो रडार है वो एटमॉस्फेरिक इंजीनियर, दैट इज वाई ओनली क्रूज के रिलेटेड है। हो सकता है यूपीएससी मेंस में ये पूछ ले S-500 S-400, क्योंकि एक बार जैसे चंद्रयान और इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ डिफरेंस पूछा भी है उन्होंने, यूपीएससी ने एक बार। इंद्रजाल रेंजर, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, बिकॉज ये एक मूविंग व्हीकल है, गाड़ी की तरह चलती है, जिसमें ऐसे आपके कुछ ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए जो आपको ड्रोन्स को कवर कर सकते हैं। यानी जो हम कहते हैं ना कि ड्रोन की मैन्यूवरेबिलिटी, एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि आप जो ये एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हो, हाउ कैन इट हैंडल द इशू ऑफ कि भाई छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, उनको आपने डिटेक्ट या ट्रैक तो कर लिया, लेकिन कितना बेटर, क्या एफिशिएंसी उसकी, प्रिसिजन स्ट्राइक हो पाएगी। इंद्रजाल एटलीस्ट हैंडल्स दैट, एंड अगेन इट इज एन AI enabled third defense element which has certain kind of AI which we are discussing in this session। यानी गाड़ी की तरह मूव करते, कॉन्वॉय की तरह, मोबाइल कॉन्वॉय है, तो उस अकॉर्डिंग ट्रैकिंग इसकी बेटर ट्रैकिंग हो जाएगी। डिप्लॉयमेंट इन हाई रिस्क एरियाज, क्योंकि हमने अभी देखा था आईडीज जो होती है, पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन बेस्ड अटैक्स 22-23 इसके बाद से यूज करना स्टार्ट कर दिया। बॉर्डर कॉरिडोर्स, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस, यानी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, वहां पर इंद्रजाल रेंजर को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा गाड़ी होती है तो मूवमेंट उस अकॉर्डिंग किया था, तो वो हैंडल भी उस अकॉर्डिंग करेगा। एक्सटेंडेड डिटेक्शन रेंज, क्यों कैपेबल ऑफ 360 डिग्री डिटेंशन, क्योंकि आप मूव बार बार कर रहे हो तो आप आगे का भी देख सकते हो, पीछे का भी उस अकॉर्डिंग ट्रैकिंग कर सकते हो। मल्टी लेयर न्यूट्रलाइजेशन, GNS से यूज करता है, स्पूफिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग एंड स्प्रिंग लोडेड किल स्विच फॉर रैपिड डीएक्टिवेशन। मतलब एक तरह से ऐसा जो आपके कुछ इलेक्ट्रिक ट्रिगर्स इस तरह से यूज करेगा कि ड्रोन उसी टाइम उसी मोमेंट में ड्रॉप आउट कर जाए। Can neutralize rogue drones within 4 kilometer radius. This may they ask, वो 40 किलोमीटर दे सकता है 4 की जगह, तो वो चीज आपको उस अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल आर फाइन, इससे ज्यादा उसमें आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। चाइना's Fujian एयरक्राफ्ट कैरियर, अगेन दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कैरियर इन चाइना। कितना जा सकता है, 40 इज समथिंग व्हाट यू कैन से स्पीड, और इस तरह से देख सकते हो 160 नॉट्स तक जा सकता है। शानडोंग जो इनका पहले वाला था उससे कम से कम 2.5 से 3 गुना, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि अराउंड 50 पहले जो नॉट्स थे उसके ऊपर, या 70-75 नॉट्स के ऊपर कहीं ना कहीं ये कवर कर रहा है जो पहले था। फुल्ली फ्यूल्ड और वेपन लोडेड लॉन्चेस है। तो जस्ट ये अगर फूजियान पूछेगा तो अगर वो हो सकता है जापान है उससे मतलब कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर जैसे तमल पूछा, फूजियान पूछा, तो हो सकता है तमल में इंडिया आप फिर भी ट्रैक कर लो। अगर फूजियान में अगर उसने जापान या कुछ दे दिया तो शायद वहां पे आपको उस अकॉर्डिंग टैकल करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट चाइना शिफ्ट टुवर्ड्स इन्फॉर्म है एंड इंटेलिजेंस वॉरफेयर, बिकॉज अगेन एआई बेस्ड और इन चीजों की बात चल रही है।
हरिकेन 3000 एंड ड्रोन स्वार्मिंग। ये कुछ दे रहा है कि चाइना की कोई नोरिंको कंपनी, उन्होंने एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन इंस्टॉल किया है। इंडिया ने भी किया हुआ है रिसेंटली, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन 2024 के आसपास। 2026 में उसका एक थोड़ा सा उन्होंने ट्रायल टेस्टिंग भी किया। ये एक तरह का ड्रोन स्वार्मिंग है। इन्होंने साथ साथ अभी रिसेंटली, अगर किसी को पता हो, हमने हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक में कवर भी किया है, एटलस ड्रोन स्वार्मिंग सिस्टम भी एक हमने, चाइना ने अपना खुद का डेवलप बनाया है। नाउ व्हाट इज एन, मतलब आपका ये ड्रोन स्वार्मिंग है, एंटी ड्रोन स्वार्मिंग सिस्टम क्या होती है, इसको समझते पहले। सी एज आई सेड, स्वार्म मीन समथिंग, एक चीज जो बर्स्ट में आ रही है, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। अब आप मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से अगर छोड़ोगे भी तो वो इट कैन न्यूट्रलाइज वन एट अ टाइम, अगेन आप फिर छोड़ोगे तो लेकिन तब तक भी दूसरा आगे निकल चुका होगा। ड्रोन स्वार्मिंग के साथ इसलिए बेनिफिट है कि वो एनिमी टेरिटरी में काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट इंडिया के केस में अगर इसको देखा जाए, हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरे कंट्री से भी इन चीजों को रोकना पड़ेगा। जैसे चाइना अपना हरिकेन 3000 बना रहा है, यूएस के पास अपना लोकस्ट है, तुर्की का भी एक न्यूज में काफी था बीच में, कारगू, मे भी शायद यूपीएससी इसको भी कहीं ना कहीं पेयर के फॉर्म में, और अभी जैसे मैंने कहा एटलस भी एक है। वो उस तरह से काम करेगा। दैट इज व्हाट इज अबाउट ड्रोन स्वार्मिंग। नाउ अगेन, अगर ये हाई पावर वेपन रहेगा तो क्या होता है एक्चुअल में, हाई पावर वेपन क्या करेगा, इसी की जगह पे अब माइक्रोवेव वेपन एक रेंज के फॉर्म में रिलीज करता है और इस तरह से हीटअप करता है कि उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे, ये यहीं पे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर किसी ने बैटमैन मूवी देखी हो, खासकर फर्स्ट जो पहला पार्ट है था, माइक्रोवेव एमिटर उसमें क्या करता है, पानी को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि व्हाट इट डज दैट, कि वो वेपर की तरह एकदम से उड़ जाता है। और जितने सारे वाटर पाइपलाइंस थे, वो उस मूवी में पहले मूवी दिखाया कि गौतम सिटी में किस तरह से पूरे वाटर पाइपलाइंस फट जाते हैं। इनफैक्ट माइक्रोवेव वेपन को अगर ह्यूमंस के अगेंस्ट में यूज किया जाए, इट क्रिएट्स इमेंस अमाउंट ऑफ पेन अमंग पीपल। कैसे कि आपका जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे भी पानी होता है, माइक्रोवेव वेपन क्या करता है, उसी पानी को एकदम से इवेपोरेट करके इतना गर्म कर देगा कि आपका पूरा स्किन पूरा बर्न अप कर जाएगा इतना, इसलिए वो दैट मच अमाउंट, दैट मच क्वांटम ऑफ पेन इट क्रिएट्स। तो यस, ड्रोन स्वार्मिंग को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका एक तरह से यही है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट हो गया, रैमजेट हो गया ना, इन चीजों में क्या क्या एक है कि भाई ऐसी क्या बात चलती है इनको लेकर, मेजर इस चीज पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट there must be certain elements in aircraft technology, how it works we need to understand firstly कि टर्बोजेट और ये सब काम कैसे करते हैं। पहले क्या होता था, जो आपके एक टर्बोजेट होता था जो इस तरह से मूव करता था कि आपके फ्यूल व्हीकल बाहर जाते थे, जो अभी हमने बात किया, यानी उससे क्या होगा, थ्रस्ट मिलेगा। ये जो टर्बोजेट अपने आप में आप एक टरबाइन एक कुछ लगा रहे हो जिससे आप ये वार्म वाटर क्रिएट करते हो, जिससे फ्यूल व्हीकल को उस कंबशन उस अकॉर्डिंग मिल सके। इस चीज को स्क्रैमजेट एंड रैमजेट ने थोड़ा चेंज किया। ये लोग क्या करते हैं, दीज आर मेजरली एयर ब्रीदिंग इंजन्स। एयर ब्रीदिंग इंजन्स का मतलब कि जो हवा आती है, इंजन जैसे अगर मूव कर रहा है आगे ड्रैग की तरह, तो एयर जो आएगी आगे से, जैसे थर्स्ट लेकर आगे जा रही है, तो
आगे की जो हवा है वो अंदर घुसेगी। इन्होंने इतना स्पेस देते कि हवा अंदर जब घुसती है, इसको इस तरह से पास ऑन किया जाता है कि ये गर्म हो जाए, हाईली हीटेड हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाया था। अब ये जब हीट अप होता है तो ये फ्यूल को उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करके फॉरवर्ड थ्रस्टिंग आगे प्रोवाइड करता है। स्क्रैमजेट, लाइट, रैमजेट मेजरली इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, ताकि इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ इंजन भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। तो वो चीज है। तो यस, जैसे मैंने कहा, एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। हैव नो मूविंग पार्ट्स लाइक टर्बाइन और कंप्रेसर, जैसे मैंने कहा कि टर्बाइन की जरूरत नहीं कि वार्म एयर दे और उस अकॉर्डिंग फ्यूल को पास किया जाए, उतनी की जरूरत नहीं है। सुपरसोनिक कंबशन मेजरली क्या यूज किया था, हाइड्रोजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एज अ फ्यूल क्या हम यूज कर रहे हैं। थ्रस्ट जनरेशन 6000 किलोमीटर, दैट अगेन ये सारा चीज उतना जरूरत नहीं। एक्टिवली कूल्ड स्क्रैम्बलेट कंबस्टर काम क्या करता है, इसका मेजरली बताता हूं। फुल स्केल कंबस्टर विद एक्टिव कूलिंग अलाउ इट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट विद जनरेटेड ड्यूरिंग लॉन्ग। नाउ कभी कभार ये जो गर्म हवा एंटर कर रही है वो कभी कभार इतना ज्यादा गर्म हो सकती है दैट इट कैन बर्स्ट आउट द एंटायर एयरक्राफ्ट। तो इसके लिए ये एयरक्राफ्ट कूल, ये एक्टिव कूलिंग सिस्टम बनाए गए ताकि एयर के कुछ पार्ट को थोड़ा सा कूल डाउन करके टेम्परेचर को थोड़ा नीचे रखा जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। ओरेशनिक मिसाइल जो भी मैंने कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल है एंड इट इज हैविंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से काम करेगा, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर कैपेबल है। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि ओरेशनिक मिसाइल में आपका न्यूक्लियर वॉरहेड है, प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल है एंड बैलिस्टिक मिसाइल एज वेल। स्पीड अप टू 10 मैक एज ऑलरेडी डिस्कस। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल के केस के कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं। अब इसी में अगर हम देखें, जैसे ईरान, यूएस और इन सब में अगर कुछ कुछ जो मेजर यूज में रहा, एक सेजिल मिसाइल था। सेजिल मिसाइल इज अ मिसाइल कैपेबिलिटी ऑफ ईरान एंड दिस इज समथिंग जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी अगेन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। इसको डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है बिकॉज इसकी मनूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अपना मूवमेंट ट्रैक चेंज कर सकता है। और इनमें कुछ एक एंटी रेडार कोटिंग होती है ताकि इनको जल्दी ट्रैक डाउन ना किया जाता, अभी इसकी मूवमेंट और ये सारी चीज हेल्प आउट करता है। फिर जैसे हमने बात किया थार्ड की, थर्ड इज अगेन आई डोंट नीड टू टेल कि भाई क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मैंने ऑलरेडी ऑपरेट कैसे करता है ये मैंने बता ही दिया है। अनदर थिंग विच वाज अ बिट इन न्यूज वाज हैमर मिसाइल। ना हैमर मिसाइल भले ही फ्रांस में बनता है, लेकिन इंडिया एंड फ्रांस का एक जॉइंट कोलैबोरेशन वेंचर बनेगा जिसमें हैमर मिसाइल इंडिया में डेवलप किया जाएगा। Best part about it is that it has all weather capability. Precision striking होती है। ये कुछ कुछ चीजें
पता होनी चाहिए. So with this we can end this session, and I hope you have got a better clarity of the pictures, which are those prominent and possible topic or plausible topics which can be asked by UPSC. We have also discussed certain things about related to defense front की कौन से वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, so that for your better understanding you can handle the same. And I wish आपको, because this overall idea has come out, I wish this can give you a better clarity. आप then अब इस इसको एज लास्ट मिनट रिवीजन की तरह केवल थोड़ा सा रीड करके आराम से बढ़ जाओ, एंड अपना साइंस एंड टेक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करते हैं. ठीक है. सो फॉर टुडे आई से गुड बाय टू यू. थैंक यू सो मच.